Hello everyone and welcome back to my channel Naveen Siksha 1, and today I'm presenting you the chapter number 16 for class 4th. The topic of today's chapter is a busy month, and it's a kind of letter written by a well-known writer of stories, that is the Kijju Bhai. Kijju Bhai's stories are very common, and children love to read those stories. Mostly he wrote stories in Gujarati, and then it is again translated in Hindi and other languages. So it's a kind of letter written by Giju Bhai, that is to Bal Mandir children, Bhavnagar, in April 13, 1936. Oh, it's too long. It means about 100 years ago. Okay. Mm, Dear children, it's 3 o'clock in afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves, the sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding chicks with different kinds of insects and other things. मीन्स ये उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है कि बच्चों 3 बजे की बात है, दिन के 3 बजे। तो उस वक्त कोई बादल नहीं थे आसमान में और बहुत ब्राइट सन निकला हुआ था, मतलब बहुत तेज़ गर्मी थी। और स्पैरोज, डोव्स और सनबर्ड्स जो थी अपने काम में बिजी थे, कुछ नेस्ट बनाने में, कुछ के नेस्ट में एग्स थे, कुछ में से नेस्ट में से चिक्स निकल आए थे, तो कुछ अपने बेबीज़ को फीड करने के लिए। और इस तरीके का सीन उन्होंने एक डिस्क्राइब किया है बच्चों को related to the birds. In our courtyard also there are a baby dove. मीन्स उनके जो अपने घर का जो आंगन था उसमें भी एक डॉव रहते थे और वहाँ एक बेबी डॉव भी था. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. मीन्स एक एग में से बेबी निकल आया था और एक में से बेबी नहीं निकला था. On the way to Gopal Bhai's house there are many stones along the roadside. In the space between these stones an Indian robin had laid its eggs. Pachu Bhai showed it to me. It looked through the I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair, and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like crow. A crow's nest is made up of all the kinds of things, even pieces of wire and wood. Means see the difference in between these two birds. देखो रॉबिन अपना जो नेस्ट बनाता है वो सॉफ्ट चीज़ों से बनाता है, जैसे कि सॉफ्ट ट्विग्स हैं, रूट्स हैं, वूल है, हेयर है, कॉटन वूल है, उसकी वजह से। और वहीं जो क्रो है वो अपने नेस्ट में हार्ड चीज़ें भी रख लेता है, लाइक वायर भी का पीस भी रख लेगा, वुड भी रख लेगा उसके अंदर. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बर्ड्स. आई सॉ अ बेबी बर्ड इन रॉबिन्स नेस्ट. इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक wide open. The mouth was red from inside, and a little while the robin flew to the nest and put something in Chick's open beak, maybe a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its chick. मीन्स उन्होंने बताया कि वो जो बेबी था वो मुंह खोले हुए था, मुंह उसका एकदम रेड था, और रॉबिन मदर रॉबिन ने हो सकता है उसके मुंह में स्मॉल इंसेक्ट्स को रखा हो और उसके बाद वो वहीं बैठ गई क्योंकि वो रात हो गई थी. अब देखिए ये एक पिक्चर है कोयल की. कोयल के बारे में एक फैक्ट है, वो क्या है देखिए. यू नो दैट कोयल सिंग्स स्वीटली. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट. द क्रो हैचेस देम along with its own eggs. ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाती और अपने अंडे देती है क्रो के नेस्ट में, और ये क्रो ही उनको हैच करता है. मीन्स ये बर्ड उनको हैचिंग भी नहीं करती, मीन्स अंडे से बच्चे निकलने का प्रोसेस भी क्रो ही करता है उसमें से. दिस इज द बाबिट. ओके, वेरी कॉमन bird, and there is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow built its nest high up on a tree. मीन्स कौवा अपने जो नेस्ट बनाता है वो ट्री के सबसे टॉप पार्ट पर बनाता है. द डोव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज. जबकि डोव जो है यहाँ रखा है जो कबूतर की तरह लगने वाला है, बट इट्स इट्स कलर इज डिफरेंट.
तो बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन इसकी आवाज़ भी डिफरेंट होती है डोव की। तो वो अपना एंड नेस्ट कहाँ बनाता है? कहीं भी छोटे प्लांट पर, लाइक मेहंदी की हेज पर भी बना सकता है, कैक्टस के प्लांट में बना सकता है, और अगर आपका और कोई हेज है तो उसमें भी बना सकता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर हाउस। और जबकि स्पैरो तो हमारे घरों के आसपास ही आपको घूमती मिल जाएगी। इट मेक नेस्ट ऑन द विंडोज, anywhere on the top of the cupboard, behind a mirror, a ledge, or pigeons also make their nest like this. Pigeons भी sparrows की तरह अपना nest बनाते हैं. Often they make nest in old or deserted buildings. पुरानी buildings में भी nest अपना घर ये बना सकते हैं corn pigeons. The barbet or the coppersmith bird can be heard in summer with its tuk 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 call. It make its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. It lays its eggs on the fold of the leaf that it had made. This is its nest. सी ये टेलर बर्ड है, ये दो लीव्स को ऐसे जॉइन करती है, सेल लेती है और उसके बीच में ये ग्रास रखती है और वहीं पर अंडा देती है। इस तरीके से इसका नेस्ट है। जबकि वीवर बर्ड जो है अपने घोंसले को बहुत सुंदर तरीके से वीव करती है, बनाती है। और वहीं आप देखिए कि जो स्पैरो है उसका तो नेस्ट आपके घर के आसपास ही मिल जाता है। और बारबेट का भी आपने घर देखा, बताया उन्होंने कि वो भी अपना छोटा सा नेस्ट बनाती है, लेकिन किसी भी होल के अंदर, ट्री ट्रंक का जो होल होता है उसमें बैठ के अपना बनाती है। द बर्ड मेक्स नेस्ट एंड दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड अप ऑफ? ये सनबर्ड है, इन्होंने देखा कि किससे ये अपना नेस्ट बनाती है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth rags, and even spiders' cobwebs. यानी कि बहुत सारी चीज़ों से, मतलब ग्रास से, सूखी पत्तियों से, किसी भी लकड़ी के टुकड़े से, कपड़े से मिल करके वो अपना एक सनबर्ड अपना घोंसला बनाती है। और when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. तो बच्चे, छोटे बच्चे तो ये करेंगे। अब देखिए वीवर बर्ड्स। वीवर बर्ड्स का जो नेस्ट होता है वो कौन बनाता है? ये एक फैक्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वूवन नेस्ट. द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग. ये जो मेल है ये काफ़ी दो तीन बनाता है उसके लिए नेस्ट, और उसका सिलेक्शन जो है कौन सा नेस्ट बेस्ट रहेगा वो फीमेल वीवर बर्ड बताती है, और जो उसको अच्छा लगता है उसमें से नेस्ट, उसी में वो अपना अंडा देती है। मीन्स सिलेक्शन करती है फीमेल और बनाता है उसमें मेल। ओके, तो बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स is only the first step. It is difficult to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. अब उनको बच्चे निकला है तो पालना भी है, तो उनको फिर वो लोग उड़ना भी सिखाते हैं। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, बहुत सारे उनके दुश्मन भी हैं। कैसे? जैसे ह्यूमंस हैं, अदर एनिमल्स हैं, क्रोज हैं, स्क्विरल्स हैं, कैट्स हैं, रैट्स हैं। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स. मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और वो इसको तोड़ भी देते हैं कभी कभी। To keep oneself safe from danger, to find food, to make a nest, hatch the egg, and raise the chicks safely, all these tasks are the test for the every bird. तो उनको इतने काम करने पड़ते हैं अपने एक बच्चे को बड़ा करने के लिए. And see how the birds still sing with joy and spread their wings with fly and freely. और उसके बाद भी ये बर्ड्स इतनी मेहनत करने के बाद भी खुश रहती हैं, उड़ती हैं, गाती हैं और पंख फैलाकर पूरे आसमान में उड़ती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। सलाम एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गिज्जू भाई। और गिज्जू भाई फिर उसको थैंक्स बोलते हैं बच्चों को कि देखो इतना सारा काम ये बर्ड्स करती हैं। तो हमने इससे क्या सीखा कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे नेगेटिव डेज भी आते हैं, तो लेकिन उससे हमें घबरा करके नहीं चलना है और आगे बढ़ते
रहना चाहिए जस्ट लाइक दीज बर्ड्स। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ आपके लिए कर दिए हैं, दैट यू कैन डू वेरी वेल। आप इसमें पढ़ के कर सकते हो और आप चाहे तो इन आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। इसमें एक फैक्ट आपके लिए और दिया गया है कि अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। तो ये कौन सी बर्ड हो सकती है? इट्स अ नेशनल बर्ड। यस, इट इज अवर पिकॉक। गुड। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किसी एक नेस्ट को देख करके देखने देने हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट होता है कि हम स्पैरो के नेस्ट को नियरेस्ट से देखते हैं, लेकिन डोंट टच द नेस्ट, क्योंकि जैसे ही आप उसके नेस्ट को टच करेंगे तो फिर बर्ड्स अपने नेस्ट में फिर दोबारा कभी नहीं आती हैं। तो बच्चों, इट इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 डोंट टच द नेस्ट ऑफ एनी बर्ड। ओके, ये फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। उन्हीं पर बेस्ड आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। बर्ड्स यूज अ नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। जैसे ही उनके अंडे देती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो उस अपने घर को या नेस्ट को छोड़ करके कहीं और चली जाती हैं, ठीक है ना। इमेजिन how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learned how to walk and talk. ये सोचो अगर हमें भी अपना घर ऐसे ही छोड़ना पड़ता तो कैसा लगता। Just feel that moment. After they leave their nest, different kinds of birds live at different places, some on trees, some near or on water, and some on the land. ओके, तो बहुत सारी बर्ड्स हैं अपने नेस्ट को छोड़ देती हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रहती हैं, ठीक। Other animals also have different places where they live, on the land, under the ground, in water, on trees. तो एनिमल्स हमारे डिफरेंट जगहों पर रहते हैं। ज़मीन पर भी रहते हैं, ज़मीन के अंदर भी रहते हैं, पानी पर भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं, ठीक है। तो इस लेसन से हम लोगों ने इतनी सारी नॉलेज ली। अब देखिए आगे भी बहुत सारा पार्ट है इसके अंदर। इट्स अ वेरी बिग लेसन बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे इसमें देखिए बर्ड्स फीट दी गई हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स फीट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट नीड्स। जैसे कि ये फीट है टू स्विम इन वाटर, तो जितनी भी बर्ड्स आपकी लाइक डक है तो उसका ये आपको पैर नजर आएगा, उसका फीट है। ऐसे ही टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, तो जितनी बर्ड्स ब्रांचेस ट्री पर बैठती हैं उनके इस तरीके के फीट होते हैं। टू कैच द प्रे विद इट्स वॉट इट हंट्स, उसको पकड़ने के लिए, लाइक जैसे ईगल, ईगल का आप देखेंगे उसका पैर आपको ऐसा नजर आएगा। टू क्लाइम द ट्री, अगर पेड़ पर उसको चढ़ना है वॉक करके तो ऐसे फीट्स होते हैं बर्ड्स के। टू वॉक ऑन लैंड, जो लैंड पर चलते हैं लाइक क्रेन्स हैं, तो उनके आपको इस तरीके के फीट्स नजर आएंगे। अब बर्ड्स की बीक वो भी डिपेंड करती है कैसा खाना वो खाती हैं। लाइक टू टीयर एंड ईट मीट, किसी भी मीट को या किसी उसको खाने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, ये ईगल है। टू मेक द होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक, जैसे वुड पेकर है हमारा, सन बर्ड है तो उसकी भी बीक आपको इतनी लंबी मिलेगी। टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के अंदर से, फूल के अंदर से जा करके नेक्टर को चुनना और उसको सक कर लेना, वैसी ये इसकी बीक है। देन टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द मड एंड शैलो वाटर, तो आपको इस तरह की बीक मिलेंगी उन बर्ड्स की। टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स, आपको नट जो खाती हैं सीड बर्ड्स, उनके बीक आपको इस तरह की मिलेगी। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, आपको क्रो है जैसे कि, उसका आपको इस तरह की बीक मिलेंगी। तो जिस भी एरिया में वो रहते हैं, जैसा वो खाना खाते हैं, उस हिसाब से इनकी बीक्स का को बनाया गया है नेचर ने। अब एनिमल्स टीथ, हैव यू सीन एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो जैसे कि आपने देखा काऊ के, जैसे काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग grass. The teeth on her sides are large and flat for chewing the grass. तो उनके साइड्स के जो टीथ हैं वो लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं, और फ्रंट टीथ जो होते हैं वो उनके शॉर्ट होते हैं। कैट्स हैव शार्प टीथ्स फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, इसलिए इनको कार्निवोरस एनिमल्स बोलता है। कैनाइन्स उनके बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे लायंस के होते हैं। ऐसे देखिए ये है आप snakes have sharp curved teeth but they do not chew their prey. Snakes always swallow the food, whole food, है ना, वो कभी भी दांत से काटते नहीं हैं खाने को। ये सिर्फ किससे है, अपने आप को बचाने के लिए है, प्रे से,
में इसी में से पॉइजन फेंकते हैं। स्क्विरल्स स्क्विरल्स क्योंकि नट्स खाती हैं मोस्टली, तो उनके टीथ कैसे होंगे? ग्राउनिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। मीन्स वो जो टीथ हैं उनके हमेशा ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते हुए टीथ होंगे। छोटी मतलब उसकी टीथ से आप एज बता सकते हैं स्क्विरल की, कि अगर वो कितनी एज की है। दे हैव टू कीप गॉनिंग द टी इन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिगनिंग टू लॉन्ग। तो अपनी वो इसलिए टीथ को वो अपना उसे काटते हैं जब हार्ड चीज़ को, इसलिए उनके टीथ जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो थोड़े से आगे से ब्लंट भी रहते हैं। नाउ इसको ग्नोइंग कहते हैं, जो वो लोग काटती है ना चीज़ को, ग्नोइंग ग्नोइंग ऑन थिंग्स। कुतर कुतर कुतरना, तो वो जैसे कुतरती हैं तो उनके लीव्स भी, उनके जो सॉरी टीथ्स हैं वो भी थोड़े से साथ साथ में कम होते रहते हैं, लेकिन दे कीप ऑन ग्रोइंग, पूरी उम्र उनके लंबे होते हैं। नाउ फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब आपको अपनी टीथ के बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है? और अपने दोस्त की टीथ के बारे में यहाँ लिखेंगे। इमेजिन एंड शेयर और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। अब आप एक बर्ड बनाएंगे एंड देन राइट द डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ दैट bird. So it's a very long lesson, but it's very interesting. It has so many facts. So keep learning. Enjoy your learning. Thank you for sharing, like, and subscribing my channel. Thank you.